जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्चि से मैं राकेश खत्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये समुद्र तट का मनभावन मनोरम दृश्य, यहाँ पर कोच्चि के आसपास केरला गॉड्स ओन कंट्री, और जिस तरीके से केरला की जो भूमि है वो एक तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य के कारण एक भगवान का देश के रूप में इसको जाना जाता है। केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स के बीच में सीसीएल सीजन 6 का ये आज का दूसरा मैच इस स्टेडियम पर अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल जो है वो इस तरीके तेलुगु वॉरियर 2 मैच में 2 जीत करके सबसे ऊपर, और उसके बाद चेन्नई राइनोस जो कि आज परास्त हुई 2 मैच में, दोनों में परास्त, और इस ग्रुप बी में सबसे नीचे स्थान पर। और कर्नाटका बुलडोजर्स और केरला स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, और जिसके लिए यहां पर काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़ी तादाद में दर्शक ध्वज लिए हुए और इस मैच का आनंद लेने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और बेहतरीन संघर्षपूर्ण मुकाबला, और जिससे कि काफी हद तक ये दर्शक इस बात के लिए Namaskaram Kochi. Are you ready to rock and roll? Welcome to the toss for the Southern Derby between Kerala Strikers and Karnataka Bulldozers. And let me introduce the toss party alongside me. I have the captain of the Karnataka Bulldozers, Sudeep Kicha. Alongside him, the non-playing captain of the Kerala Strikers, Padma Shri, Lieutenant Colonel Mohan Lal. We also have the playing captain of Kerala Strikers, Bala. We've also got the match referee, Ramesh Rao, Ms. Radhika, Sharat Kumar, director of CCL, Mr. Raj Kumar, co-owner of Kerala Strikers, Mrs. Sri Priya Raj Kumar, co-owner of Kerala Strikers, Jason, who's co-owner of Kerala Strikers, and Vishwa Karyappa, MD of San City. So if you are ready for the toss, then I suppose it will be Sudeep to throw. Parlay. So Sudeep has won the toss. We'll bat first. Any particular reason for that decision? We'll bat first. So, nothing else. You've had a great run even in this year's contest. What is it that you're looking at? What kind of score would you want to post? Yeah, I guess after 5 years being in the CCL, I think it's better that we start enjoying the game than getting analytical about the game. And I'm very happy to see Mohan Lal sir here. And it's nice to be in Cochin back. We've had good memories here. Let's play a good game. That's about it. Absolutely. One message for the fans here in Kochi. I love Mr. Mohan Lal too. That's it. Moving on to the man of the moment, sir. Your thoughts on the toss? Would you have preferred batting as well? No, it's again a choice. We have to bat again, so no problem. I think the fans don't mind anything as long as you're visible here. Any message to the fans out here? Please wish good luck to all players. Anything specific that you would want to say in Malayalam to them? എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായനം നേരുന്നു. എല്ലാ കളിക്കാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you very much. Thank you. Thank you. All the best, Kerala Strikers. So the news from the toss is that it's Karnataka Bulldozers who won it and they've opted to bat first. एक अच्छा टॉस जीतने में सफल रहे। फिलहाल दोनों टीमें इस प्रकार हैं। केरला स्ट्राइकर्स आर पिल्लई, रहमान, वी गोपन, आनंद, ए नंद कुमार, एम मोहन, वी मोहन, एस नायर, ए बेन्नी, बाला, बी कोडियारी, मणिकुंठन। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका बुलडोजर्स सुदीप, एच राजीव, डी शर्मा, विश्वास प्रदीप, राहुल, टीम के विकेटकीपर प्रसन्न, एस राव, जे कार्तिक, महेश प्रताप। तो कुल मिलाकर के आज यहां पर केरला की टीम के लिए मस्ट विन करो या मरो की स्थिति। हर हालत में आज के इस मैच को जीतना होगा अगर CCL 2016 के इस संस्करण में बने रहना है। अगर आज हार गए तो सभी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी, सारी संभावनाओं पर विराम लग जाएगा। इसलिए आज हर हालत में इस मैच को जीतना है। कोच्चि का नेहरू
क्रिकेट स्टेडियम इस समय दूधिया प्रकाश से पूरी तरीके से नहा चुका है। और इस समय कंडीशंस की बात करें तो मौसम में हल्की सी ठंडक मौजूद है, जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात मानी जा सकती है। हालांकि इससे पूर्व खेले गए पहले मैच में काफ़ी गर्मी थी यहाँ पर, लेकिन अब जैसे जैसे केरल और कोस्टल एरियाज़ में दिन से शाम और शाम से रात की तरफ बढ़ते हैं तो मौसम सुहावना होता चला जाता है। अब देखते हैं कि इस सुहावने मौसम में केरल और कर्नाटका के खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। प्रदीप फिलहाल यहाँ पर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। कर्नाटका बुलडोजर्स के इस्लामी बल्लेबाज। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के और एक अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केरला स्ट्राइकर्स स्थानीय टीम है और उसी को ध्यान में रख करके काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय दर्शक मौजूद हैं। पार्ले क्राउड दर्शक दीर्घा, काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद। फिलहाल खेल की शुरुआत होगी। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान ने। फिलहाल मनी कुंठन ने गेंद संभाली है। पारी का पहला ओवर लेकर के आए हैं। काफ़ी फैली हुई फील्ड, हरा भरा कोची का ये स्टेडियम, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से इसका नामकरण किया गया है। थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, मिड ऑफ ऑफ साइड में, जबकि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में 30 गज के दायरे में। तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन। प्ले की कॉल के साथ खेल की शुरुआत। प्रदीप स्ट्राइक पर। मुश्किलों में पड़ सकते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। एक बार ऐसा लगा कि शायद बॉल विकेटों की तरफ चली जाएगी, भाग्य ने साथ दिया, अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकते थे। मणिकुट्टन के रूप में बॉलिंग की शुरुआत और सामने की तरफ बहुत उम्दा फील्डिंग वहां पर अपने फॉलो थ्रू में बाईं तरफ दौड़ते हुए मणिकुट्टन के द्वारा। प्रदीप और राहुल पारी की शुरुआत करने आए हैं। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, लोकली इसे कल्लूर इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से भी स्थानीय लोग जानते और पुकारते हैं। स्पीच हल्के से पुश करके शॉर्ट कवर की तरफ, यहां पर मौका बनता था 1 रन का। इससे पहले बेहतरीन फील्डिंग की थी अपने फॉलो थ्रू में, एक बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर पारी का। टॉस कर्नाटका ने जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया। काफी छितराया हुआ फील्डिंग, नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं। आज मणिकुट्टन लेग स्टंप के बाहर पिच होती हुई और वाइड का इशारा आते हुए एक अतिरिक्त रन और मिलते हुए यहां पर, और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ते हुए 8वां मैच है ये इस सत्र का CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। और इस बार ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और उसे हवा में खेला। काफी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन मिड ऑन का फील्डर काफी पीछे, और जब तक कि वो आके उठाएं 1 रन का और इजाफा स्कोर में।
कर्नाटका बुलडोजर के सुपर फैन बन सकते हैं आप और 1 लाख रुपया जीत सकते हैं। आज एक और मैच इसी मैदान पर संपन्न हुआ जिसमें कि तेलुगु वॉरियर ने चेन्नई रेनॉस को परास्त किया 8 विकेट से। एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की और अपने आप को सेमीफाइनल की स्थिति में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। 2 में से 2 मैच जीत करके इस बार ये बाएं हाथ के बैट्समैन भेद नहीं पाए, वहां पर कवर्स में गेंद को फील्ड किया गया। ये डगआउट आप देख रहे हैं केरला स्ट्राइकर क्या और आज एक शतकीय प्रहार उस मैच में इसी मैदान पर देखने को मिला था और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी लेकिन थोड़ी सी दिशा बाहर थी ऑफ स्टंप के। बहुत कम बैकलिफ्ट के साथ हल्के से पुश किया और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। 1 ओवर के बाद स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं केरला के गेंदबाज। 20-20 ओवर के इस मैच में शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के प्रदीप और राहुल ने पारी की शुरुआत की है। फिलहाल आप सुपर फैन बन सकते हैं, हमें कॉल कीजिए और 1 लाख रुपए का नगद इनाम प्राप्त कीजिए। वीनू मोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिच पर हल्की सी घास मौजूद है लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप बॉल को सीम पर पिच नहीं कराएंगे तो बल्लेबाज के पास बेहद आसान मौका रहेगा। क्षेत्ररक्षकों की स्थिति आप देख सकते हैं, लगातार ऑफ साइड और ऑन साइड में खिलाड़ियों की स्थिति को बदला जा रहा है। तो काफी धीमी शुरुआत कह सकते हैं यहां पर कर्नाटका बुलडोजर की और सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और एक बाएं हाथ का बैट्समैन और एक दाएं हाथ के बैट्समैन के साथ वीनू मोहन ऑफ स्टंप के बाहर नीची रहती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद उतनी उछाल गेंद को नहीं मिली। तो शाम की जो ओस है उसका प्रभाव हो सकता है, हल्की ड्यू का। और ये फिर से नीचे रहती हुई गेंद और अंतिम क्षणों में बमुश्किल गेंद को धकेलने में सफल हुए यहां पर कवर पॉइंट की तरफ। और 1 रन के लिए बहुत ही आंखों आंखों में इशारा करके पहुंच गए सामने वाले छोर पर। दूसरा ओवर इस समय पारी का चल रहा है। प्रदीप, राहुल, सुदीप, राजीव, ध्रुव शर्मा, विश्वास, प्रसाना, सुनील राव, जयराम कार्तिक और यहां पर एक बार और घटनाक्रम होते हुए कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर बहुत आराम की स्थिति में नहीं पा रहे हैं और बेहतरीन फील्डिंग ठीक 30 गज के घेरे के ऊपर।
राहुल और प्रदीप इस समय ये राहुल बैटिंग कर रहे हैं और भेद नहीं पा रहे हैं वो जो ऑफसाइड का कॉर्डन है, गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, प्लेस नहीं कर पा रहे हैं गेंद को, स्ट्रोक लेने में सफल हो रहे हैं। गेंद बल्ले के ऊपर आ जरूर रही है उनके, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए रन्स नहीं बन रहे हैं। 5 बिना किसी नुकसान के। और यहां पर ये चाइनीज कट, पहुंची गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ओवर समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। मणिकुंटन और वीनू मोहन ने बढ़िया शुरुआत की है। कर्नाटका के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से खामोश रखा है। हालांकि 30 गज के दायरे से केवल 2 खिलाड़ी बाहर तैनात कर रखे हैं, लेकिन सबके बावजूद लगातार सही क्षेत्र में गेंदबाजी का सुखद परिणाम देखने को मिला है। लगातार अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज को सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश होना पड़ता है। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी तैनात कर रखे हैं। थर्ड मैन स्वीपर कवर्स, 30 गज के दायरे से 2 खिलाड़ी बाहर, जबकि 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में मौजूद। पॉइंट कवर्स मिड ऑफ। कोशिश यही रहेगी कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर आक्रमण केंद्रित रखा जाए। बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज के इरादों को पहले से ही भाप चुके थे, क्योंकि जैसे ही क्रीज के बाहर निकले थे बल्लेबाज प्रदीप, एकदम से उन्होंने गेंद की गति और दिशा में तब्दीली कर दी। बॉल को थोड़ा सा दूर पिच कराया, जिस वजह से गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हालांकि अरुण बॉल को सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन सबके बावजूद रन बनाने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। कंडीशंस यहां पर काफ़ी अच्छी है। तेज आउटफील्ड नेहरू स्टेडियम कोच्चि का। क्रिकेट और ग्लैमर का वैसे भी काफ़ी नज़दीकी संबंध है, और डगआउट क्षेत्र में अगर खूबसूरत और बेहतरीन चेहरे मौजूद हों तो निश्चित रूप से एक अलग ही आनंद महसूस किया जा सकता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। सुपर फैन के लिए बेहद सुनहरा मौका 1 लाख रुपए जीतने का। आप केवल एक कॉल करें और 1 लाख रुपए जीत जाएं। बॉल को फ्लिक जरूर किया था, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन बनाने के सभी मौकों को समाप्त कर दिया। लगातार कसी हुई गेंदबाजी। दोनों ही आरंभिक बैट्समैन कोई बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हर एनर्जी। 8वां मैच है इस सीजन का। मणिकुंटन, और ये बाहर ऑफ स्टंप के, यहां पर फिर से गैप नहीं ढूंढ पाए और वापस गेंद बॉलर के पास, कोई रन नहीं मिला। तो थोड़ी सी अकुलाहट और थोड़ी सी छटपटाहट दोनों बैट्समैन के खेल में देखी जा सकती है इस समय। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और केरला स्ट्राइकर्स कर्नाटक बुलडोजर्स ने आज टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो एक ठीक ठाक सी शुरुआत कह सकते हैं, कोई उत्साहजनक शुरुआत नहीं। और दोनों ही आरंभिक बैट्समैन शुरुआत से ही काफी दबकर खेल रहे हैं, जबकि इससे पहले जो मैच इसी विकेट पर खेला गया था उसमें चेन्नई राइनोस के विक्रांत ने एक शतक किया था, और यहां पर मिसफील्ड होते हुए और गेंद थर्ड मैन की तरफ से, और पहला चौका आते हुए यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। और राहुल का स्कोर इस चौके की मदद से 6 पर और दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स की। गेंद ठीक उनके बाईं तरफ से निकल गई, और सबके थोड़ा सा बाहर थी और खेलना तो वो सामने की तरफ जाते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद निकली थी। तो कोई बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ स्ट्रोक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 4 रन मिलते हुए
और दूसरी तरफ तेलुगु वॉरियर की टीम में जो आरंभिक बैट्समैन थे सचिन जोशी, उन्होंने 54 गेंदों पर 72 रन बनाए। तो आरंभिक बैट्समैन की तो आज बल्ले बल्ले है। T20 मैच में तीसरे ओवर के बाद थोड़ा सा इस ओवर में कोशिश की है इन दोनों बल्लेबाजों ने कि रन की रफ्तार पर थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन पूरे अंक दिए जाने चाहिए मणिकुट्टन और वीनू मोहन की बॉलिंग के लिए। और ये मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन उपयोग नहीं कर पाए। मिड विकेट की तरफ पुश किया। ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 10 बिना किसी नुकसान के। केरला के दोनों ही गेंदबाजों ने कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया है। कर्नाटका के दोनों ही सलामी बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं जोरदार स्ट्रोक्स लगाने की, लेकिन आप देख सकते हैं प्रदीप ने 9 गेंदें खेली हैं, 3 रन बनाए हैं। राहुल ने भी 9 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाए हैं। लगातार सही क्षेत्र में गेंदबाजी का लाभ उठाया है केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। चुस्त क्षेत्ररक्षण लगातार मदद कर रहा है। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका ऐसा जरूर आया था जबकि मिसफील्ड हुआ और 4 रन मिले, लेकिन इन सब के अलावा केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने और क्षेत्ररक्षकों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है अब तक, क्योंकि आज का ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला मस्ट विन। अगर आज जीते तो CCL 2016 में बने रहेंगे, और अगर आज हार गए तो निश्चित रूप से सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। CCL की एक खासियत है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। सेलिब्रिटीज को आप देख सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं इन मैचेस को, और लगातार इन मैचेस में आप कभी बॉलीवुड के स्टार्स देखते हैं, कभी टॉलीवुड के। फिलहाल इस समय मोहनलाल जाने माने अभिनेता डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, और दोनों ही बल्लेबाज लगातार बहुत हार्ड मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद पूर्व नियोजित योजना के तहत जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध ढंग से अब तक गेंदबाजी की है। लगातार विकेट के अंदर गेंदबाजी की है, जिस वजह से बल्लेबाज बराबर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ज़ोरदार स्ट्रोक लगाने की, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, CCL की यही खासियत है। डगआउट क्षेत्र में कभी सलमान खान होते हैं, कभी सोहेल खान, कभी ममूटी, कभी वेंकटेश, और आज मोहनलाल जाने माने अभिनेता फिलहाल मौजूद हैं, आनंद उठा रहे हैं मैच का। और काफ़ी दबाव दिखाई दे रहा है केरला स्ट्राइकर्स के डगआउट क्षेत्र में। भाग्य ने एक बार फिर से साथ दिया। जोरदार शॉट खेलने की फिर से कोशिश की गई, लेकिन बॉल उतनी गति और ऊंचाई के साथ फिलहाल बल्ले तक नहीं पहुंच रही है। इन कंडीशंस में अगर बल्लेबाज थोड़ा सा झुक करके, बैंड होकर के बल्लेबाजी करें, थोड़ा सॉफ्ट हैंड के साथ बॉल को गैप में प्लेस करें, तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कर्नाटका के दोनों ही सलामी बल्लेबाज कुछ खास रणनीति नहीं अपना पाए हैं। इस बार सफलता मिली, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉल को खेल दिया स्क्वायर क्षेत्र में जोरदार तरीके से 6 रनों के लिए। जो प्रयास काफी देर से चल रहा था उसमें असफलता हाथ लग रही थी, लेकिन इस बार मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। प्रदीप ने पूरी ताकत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को खेल दिया। कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं स्क्वायर क्षेत्र में, उसका लाभ भी मिला, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन के दौरान 30 गज के दायरे से केवल 2 खिलाड़ी बाहर तैनात रह सकते हैं। उसी को ध्यान में रख करके बॉल को हवा में खेला, 6 रन जुटाए। पिछली बॉल पर जिस तरीके से प्रदीप ने जोरदार छक्का लगाया था, उस शॉट का दबाव इस बॉल पर साफ तौर से दिखाई दिया। दिशा से भटक गए, वाइट के रूप में अतिरिक्त रन मिले।
इसी के साथ पारी के 4 ओवर्स हो चुके हैं, 24 रन बिना किसी क्षति के। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था वी मोहन का, जिसमें उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। 2 ओवर्स में 16 रन दिए वी मोहन ने। केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमों के बीच में आज का ये मैच। देखते हुए फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए प्रदीप आपकी स्क्रीन पर। और फिर से गेंद बल्ले की पूरी लपेट में नहीं आई, अंदरूनी किनारा लेती हुई पहुंची थर्ड मैन की तरफ और स्ट्राइक रोटेट की। सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए और 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको कॉल करना है 53335599 पर। और ये यामाहा पेसिनो जो कि फैशन और अपनी कार्यशैली के लिए एक बड़ी पहचान और युवा शक्ति के साथ जुड़ी हुई और युवतियों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन बाइक। बस बीच ये निकलते हुए थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। यहां पर थोड़ा सा अपनी दिशा से भटके और वहां पूरा उपयोग उस ज्यादा हवा दी गई गेंद के लिए। और बल्ले का निचला टो से लगने के बाद गेंद पहुंची इस बार थर्ड मैन की तरफ से। चौके की मदद से स्कोर 29। तो सीसीएल सुपर फैन का सवाल है कि कर्नाटका बुलडर्स का कैप्टन, उनका कप्तान कौन है? आइए दीजिए जवाब और जीतिए 1 लाख रुपया। 29 बिना किसी नुकसान के। बैक टू द बॉलर। तो ढीली गेंद का इंतजार कर रहे हैं वो। आपको कॉल करना है 53335599 पर और आप बन सकते हैं आज सुपर फैन सीसीएल मणिकुट्टन। और फिर से हल्के से प्लेस कर दिया, यहां पर सफलता प्राप्त की गैप ढूंढने में और जब तक कि सीमा रेखा के नजदीक से गेंद को फील्ड करें। 30 पर पहुंचा दिया स्कोर को और दोनों ही बैट्समैन इस समय 13-13 के अपने निजी स्कोर पर। बहुत बेहतरीन तरीके से अंतिम क्षणों तक बल्ले के बीचों बीच गेंद को पढ़ने की कोशिश की और बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगाई, सिर्फ प्लेसमेंट। 28 गेंदों पर 31 रन की भागीदारी। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ पुश किया यहां इस गेंद को बिना किसी रन के। कर्नाटका बुलडोजर टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए एक सधी हुई शुरुआत कह सकते हैं इसे, लेकिन जो दर्शकों की अपेक्षा यहां पर मौजूद एक तेज और खासकर पावर प्ले के ओवर में बड़े शॉट देखने की, और यहां पर कोशिश करते हुए 30 गज के घेरे के ऊपर से गेंद को उछाला, यहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। तो यहां पर बेहतरीन मौका देखते हुए ढीली गेंद पर पूरा प्रहार और 5 ओवर के बाद 35 बिना किसी नुकसान। हालांकि शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष जरूर किया था प्रदीप और राहुल ने, लेकिन अब स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर आया है। पिछले 2 ओवर्स में लगातार जोरदार स्ट्रोक्स लगाने में सफल रहे हैं ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज। कर्नाटका के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बार्ले क्राउड लगातार उत्साह और एक नई उमंग के साथ
अपनी स्थानीय टीम केरला स्ट्राइकर्स को सपोर्ट कर रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिव्यांग सेन। हार्दिक स्वागत। शुक्रिया मनोज। कर्नाटका बुलडोजर्स धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए इस पारी में, और इसी वजह से इस मैच में काफी मजा आने वाला है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अर्जुन नंदकुमार और केरला स्ट्राइकर्स की बॉलिंग के बारे में ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि पिछले सत्र में भी, पिछले संस्करण में भी इन्हें देखा था करीबी से, तो एक आप कह सकते हैं कि एक तरफा एक अटैक है, ज्यादा भिन्नता इसमें नहीं है। जरूर लेफ्ट आर्म सीमर हमने देखा था विनू मोहन में, लेकिन आज थोड़ी सी परिवर्तन अगर कर सकें तो काफी फायदेमंद होगा। हालांकि शुरुआत में अनुशासन अच्छी रही थी मनोज, पर उस अनुशासन को यहां पे बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका में बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं।